پشت پر کسی کو لے کے آ رہی تھی. اللہ اکبر. یہ امام حسین کی بہن حضرت زینب تھی جو بیمار زین العابدین کا بیمار زین العابدین کو آگ کے اندر سے خیمے کے اندر سے لے کے باہر آ گئی. اللہ اکبر. ایسے ایسے مناظر کربلا کی سرزمین پر پیش آئے. بہت ظلم و ستم ڈھائے گئے. حضرات محترم آوتی کو بیان کیا جاتا ہے جب آدھی رات کا وقت گزر گیا. آدھی رات کا وقت گزرا. حضرت زینب نے دیکھا لاشوں کا پہرا دے رہی تھی. حضرت زینب نے دیکھا کوئی سایہ نظر آیا, گھوڑے پر سوار ہو کے کوئی آیا ہے. حضرت زینب کے قریب آنے کے بعد, مقتل کے قریب آنے کے بعد اس آنے والے نے کہا کہ اے بیوی یہ بتا یہ دونوں لاشیں کس کی ہیں؟ تو حضرت زینب نے کہا کہ یہ علی اکبر کی لاش ہے, یہ علی اصغر کی لاش ہے. اس کے بعد آنے والے نے پھر پوچھا یہ تو ننھی ننھی لاشیں کس کی ہیں, یہ دو چھوٹی چھوٹی لاشیں کس کی ہیں؟ پھر اس کے بعد حضرت زینب نے کہا کہ یہ میرے دونوں بچے اور محمد کی لاشیں ہیں. اس کے بعد وہ سوار جانے لگا. حضرت زینب نے سوار سے رکنے کے لیے کہا ٹھہر جائے پوچھنے والے, تو نے تو مجھ سے پوچھ لیا یہ لاشیں کس کی ہے, یہ لاشیں کس کی ہیں, مگر تو بھی تو بتاتا جا کہ تو کون ہے. آنے والے نے جب اتنا سنا چہرے سے پردہ ہٹایا اور کہا بیٹی دیکھ لے میں تیرا نانا محمد رسول اللہ ہوں, تیرا نانا محمد رسول اللہ ہوں, تیرا پہرا دیکھنے کے لیے آیا تھا. حضرات محترم روایت یہ بھی ملتی ہے جب آدھی رات کا وقت گزر گیا, رات نیند کسے آنی تھی, رات کا ماحول تھا, نیند کسے آنی تھی, ساری رات جاگتے ہوئے کٹ گئی. جب آدھی رات کا وقت گزرا حضرت زینب لاشوں کا پہرا دے رہی تھی, تلوار لے کے کھڑی تھی. انہوں نے دیکھا کہ دو سائے نظر آ رہے ہیں. حضرت زینب نے پکار کر کے کہا خبردار آگے نہ آنا, کیا تمہیں پتا نہیں کہ ایک بہن اپنے بھائی کی لاش کا پہرا دے رہی ہے؟ آواز آتی ہے بیٹی ہم کوئی غیر نہیں ہے. حضرت زینب نے جب سنا تو پہچان لیا کہ یہ تو میرے ابا علی کی آواز ہے. پھر یقین کرنے کے لیے حضرت زینب نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہے, اپنا نام بتا دیجئے. تو آواز آتی ہے بیٹی ہم تیرے باپ علی ہے, علی مشکل کشا ہے. اور رات محترم حضرت زینب نے پھر کہا ابا جان. آواز آتی ہے ہاں بیٹی کہو, باپ کی جان تجھ پہ قربان, کہو کیا کہنا چاہتی ہو. حضرت زینب نے کہا کہ امی جان نہیں آئی ہے. حضرت علی نے فرمایا ہاں تمہاری ماں فاطمہ الزہرا بھی آئی ہے. اس کے بعد حضرت زینب نے کہا امی جان آپ ذرا قریب آئیے. ادھر سے آواز آتی ہے بیٹی ہم قریب نہیں آ سکتے ہیں. اس کے بعد حضرت زینب حضرت علی سے مخاطب ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے بابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے جب آپ کا گھر لوٹا جا رہا تھا, آپ صبح کیوں نہیں آئے جب آپ کے علی اصغر کے حلق میں جو تیر پھنس گیا تھا, آپ صبح کیوں نہیں آئے جب حضرت علی اکبر کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے. ابا جان آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا کا بازو مارا جا رہا تھا. ابا جان آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب ننھی سکینہ پیار سے پڑھ رہی تھی, آپ کا گھر لٹ گیا ہے تب آپ آئے ہیں. ابا جان آپ کا قاتل شہید کر دیا گیا ہے تب آپ آئے ہیں, آپ کا باصلہ شہید کر دیا گیا ہے تب آپ آئے ہیں. اور ذات محترم ادھر سے آواز آتی ہے بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے اور ہم اس وقت بھی آئے تھے, ہم نے میدان جنگ کا سارا نقشہ دیکھا ہے. حسین نے اسی طرح امتحان دیا ہے جس طرح سے پروردگار عالم نے چاہا تھا. پروردگار عالم کی مرضی کے مطابق حسین نے امتحان دیا ہے اور میدان کربلا میں وہ کامیاب ہو کے نظر آئے ہیں. اور رات محترم رات کسی طرح کٹتی ہے جب صبح کی سفید نمودار ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت امام زین العابدین سجدے کے عالم میں تھے, اسی عالم میں آ کے آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو پردہ دار بیویاں تھی ان کے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا گیا, پیچھے کر کے باندھ دیا گیا. اس کے بعد سواریوں پر بٹھایا گیا, سواری کے اوپر نہ کوئی بستر بچھایا گیا نہ کچھ بچھایا گیا, بلکہ اونٹوں کی ننگی پشت پر پردہ دار بیویوں کو بٹھا دیا گیا. حضرت زین العابدین
आबिदीन के पैर में बेड़ियां पड़ी है, हाथों में हथकड़ियां लगी है, गले में जंजीर डाल दिया गया है। इतना वजनी जंजीर था कि सर झुका करके आप चल रहे थे। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब ये काफिला चला है ना मैदानी करबला से जब ये काफिला चला है, लाशों के टुकड़ों को जब हजरत ज़ैनब ने देखा है, मदीना शरीफ की तरफ चेहरा करके कहा था, या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, अपने हुसैन को देखे, आपका हुसैन कैसे कटा कटा पड़ा हुआ है। अपने हुसैन को देखे, आपका हुसैन किस तरह से अपना सर कटवा के मैदानी करबला में पड़ा है, और हवाएं इसके ऊपर मिट्टी डाल रही है, गर्दो गुबार डाल रही है। रवायत में आता है जब हजरत ज़ैनब ने इस दर्द से रोया था तो अपने ही गैर के आंखों में भी आंसू आ गए थे। इंसान तो इंसान है, जिनों के रोने की भी आवाज आ रही थी मैदानी करबला में। उसके बाद इमाम हुसैन के सरे अक़दस को नेज़े पर चढ़ा के, नेज़े पे रख के ऊपर उठा के ले जाया जा रहा था मैदानी करबला से। और रात ये काफिला मैदानी करबला से आगे गुजरता है, और चलते चलते जो है एक जगह पे, एक मकाम पे जब ये काफिला जाके पहुंचा तो वहां एक गिरजा घर के करीब पहुंचा। गिरजा घर का एक राहिब था जिसका नाम यहया यहूदी था। वो यहया ने जब इमाम हुसैन का सर देखा, और क्या देखा कि हुसैन के कटे हुए सर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। यहया ने पूछा पड़ाव डालने वालों से, अमर इब्ने साद से और शिमर वगैरह से पूछा, ये बताओ ये सर किसका है। उन लोगों ने जवाब दिया कि ये हुसैन इब्ने अली का सर है, ये नबी के नवासे हुसैन इब्ने अली का सर है। अल्लाह अकबर। फिर यहया यहूदी ने कहा था, तुम लोग कितने कम वक्त हो, तुम लोग कैसे इंसान हो, तुम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो उसी रसूल के नवासे का सर काट दिए हो। तुमने जिसका कलमा पढ़ा उसी नबी के नवासे का सर काट दिया है। उसके बाद ये यहया यहूदी गया और खाना पका करके लाया, इमाम हुसैन के घर वालों के लिए खिलाना चाहा, मगर अमर इब्ने साद ने खिलाने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो ये यहया यहूदी अपनी तलवार निकालता है। तलवार निकालने के बाद इसने भी लड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 8 यजीदियों को वासिले जहन्नम करता है। उसके बाद वो खुद भी जा बहक हो जाया करता है, यानी जो है खुदा की राह में वो भी शहीद हो जाया करता है। इमाम हुसैन की मोहब्बत में जानिसार कर दिया करता है। अल्लाह अकबर। उसके बाद ये काफिला और आगे बढ़ा, ये काफिला और आगे बढ़ा, कूफा करीब आने वाला था। खोली के हाथ में इमाम हुसैन का सर था। खोली ने सोचा कि सबसे पहले मैं जाके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास पहुंचूंगा सर लेके, तो मुझे बहुत ज्यादा इनाम से नवाजा जाएगा। यही सोच के ये सर इमाम हुसैन को सबसे पहले ले जाके कूफा में पहुंचा। लेकिन जब कूफा में ले जाके पहुंचा तो वहाँ दारुल हुकूमत का दरवाजा बंद हो चुका था। लिहाजा अब सर इमाम हुसैन को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास ले जाने के बजाय खोली अपने घर इमाम हुसैन के सर को ले आया, झोली में रख लिया नेज़े से उतार के। और जब घर ला के पहुंचा तो खोली की बीवी ने पूछा, क्या लेकर आए हो। कहने लगा, मैं हुसैन का सर लेके आया हूँ, यजीद के बागी का सर लेकर आया हूँ, और वो सर लेके आया हूँ जिसके इनाम में हमें इतनी मालो दौलत मिलेगी कि हमारा घर भर जाएगा। खोली की बीवी ने जब इतना सुना ताज्जुब करने लगी, अफसोस करने लगी, और कहने लगी, तुम कैसे इंसान हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी रसूल के नवासे का तुमने सर काट डाला है, तुम कैसे इंसान हो। अल्लाह अकबर। रात हो चुकी थी। खोली की बीवी ने इमाम हुसैन के सर को लिया। सर को लेने के बाद एक जगह पे ले गई, रखा एहतराम के साथ, दर्दो गुबार को साफ किया, खून को साफ किया, बैठ करके इमाम हुसैन के चेहरे की जियारत करने लगी, सरे इमाम हुसैन को देखने लगी। और रात देखते देखते खोली की बीवी ने क्या देखा, इमाम हुसैन के सर से एक नूर निकला, जो नूर आसमान तक चमकता हुआ चला गया। इमाम हुसैन के सर से नूर निकला और वो आसमान तक चमकता हुआ चला गया। खोली की बीवी हैरान रह गई। इतने में 4 औरतें आकर के हाजिर हो गई। जब 4 औरतें पहुंची तो खोली की बीवी ने उन औरतों को देखा, पूछा, आप लोग कौन हैं। तो उसमें से एक औरत ने कहा कि मैं इमाम हुसैन की माँ फातिमा
ज़हरा हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं खदीजतुल कुबरा हूँ, तीसरे ने कहा मैं मरियम हूँ, चौथी ने कहा मैं आसिया हूँ। उसके बाद वो चारों औरतें मुबारकबाद देने के बाद होली की बीवी को वो चारों औरतें वहाँ से गायब हो जाया करती है। फिर जब सुबह होती है होली की बीवी ने वो सर लिया, होली के हवाले किया और अपना घर और अपने बच्चों को छोड़ के चली गई। जब वो जाने लगी तो होली ने कहा कि ऐसे हमारे बच्चों को छोड़ के न जाओ, ऐसे हमारा घर छोड़ के न जाओ, हम बर्बाद हो जाएंगे। होली की बीवी ने कहा ऐ होली, तेरे बच्चे हुसैन के बच्चों से अफजल नहीं है, तेरा घर हुसैन के घर से बेहतर नहीं है, तेरे बच्चे तेरे बेटे हुसैन के बेटों से अफजल नहीं है, तूने हुसैन के बेटों को शहीद कर दिया मैदान करबला में, तेरे बच्चे हुसैन के बच्चों से अफजल नहीं है। ये कह करके होली की बीवी अपना घर छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाया करती है। और रात मोहतरम सुबह जब होती है इमाम हुसैन का सर और जो कैदी बनाए गए थे ज़ैनुल आबिदीन हजरत ज़ैनब, हजरत शहरबानो, हजरत सकीना और दीगर जो औरतें और बच्चे थे वो सब ले जा करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने खड़े कर दिए जाते हैं और इमाम हुसैन का सर पाक की तख्त में लेके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने रख दिया जाता है। कूफा की सरजमीन है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तख्त खिलाफत पे बैठा हुआ है, हुसैन पाक का सर उसके सामने रखा हुआ है। उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा ये कौन है? तो लोगों ने बताया कि ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि ये कैसे बच गई है? हज़रत मोहतरम तो हज़रत ज़ैनब ने जवाब दिया कि अल्लाह जिसे चाहता है जिंदगी देता है, जिसे चाहता है मौत देता है, अल्लाह ने मुझे चाहा बचा लिया। ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा ये कैसे बच गया है? हज़रत मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन ने भी यही जवाब दिया। उसके बाद जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा ऐ ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारे बाप हुसैन ने यजीद की तख्त खिलाफत को छीनना चाहा और वो चाह रहा था कि यजीद का नामो निशान मिटा दे, लेकिन अल्लाह ने यजीद को बचा लिया, हुसैन को पामाल कर दिया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इतना सुनना था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की ज़बान से, इतना सुनना था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तरफ उठते हैं और आप जब जवाब देते, क्या जवाब देते हैं ज़ैनुल आबिदीन? कहते हैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तू झूठ बोल रहा है, तू समझता है हुसैन का सर कट के पामाल हो गया है। हुसैन का सर कट के पामाल नहीं हुआ है, बल्कि हुसैन अपना सर कटा के हमेशा के लिए जिंदगी पा गए हैं। अगर यकीन नहीं आता है तो अभी भी देख ले, कटे हुए सर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। इमाम हुसैन के कटे हुए सर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास एक छड़ी रखी हुई थी, उस छड़ी को लिया, इमाम हुसैन के लबों पे मारने लगा, पेशानी पे मारने लगा। वहीं पर एक बूढ़े सहाबी हजरत ज़ैद इब्न अरकम बैठे हुए थे, देख के बर्दाश्त न कर पाए, साथ फरमाते हैं एक कमबख्त इस छड़ी को जल्दी से हटा ले, इमाम हुसैन के सर, पेशानी पे और लबों पे इस छड़ी को न मार, क्योंकि मैंने देखा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पेशानी को चूमा करते थे, मैंने अपने रसूल को इन लबों को चूमते हुए देखा है, इसलिए इस छड़ी को हटा ले। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जब इतना सुना, कहने लगा कि अगर तुम सहाबी न होते और इतने बूढ़े न हो गए होते तो तुम्हें शहीद कर देता, तुम्हें कत्ल कर देता। उसके बाद हजरत ज़ैद